Hi friends, today I am going to explain Deep Water Part 2nd. Earlier I already told you the part first of Deep Water. So several hours later I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. थोड़े घंटे बाद विलियम जो था घर गया और वो बहुत अपने आप को बहुत कमज़ोर फ़ील कर रहा था, वो काँप भी रहा था। बट वो जब बेड पे लेटा तो वो रो ही जा रहा था। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि वो जो डर था उसके दिल में काफ़ी दिनों तक रहा। और उस इंसिडेंट से वो फिज़िकली बहुत अपसेट हो गया था, थोड़ा-सा काम करता था और उसकी नीज़ ज़्यादा वेट नहीं सह पाती थी और उसको वॉमिटिंग की तरह फ़ील होता था। और विलियम इसलिए काफ़ी दिन तक स्विमिंग पूल में नहीं गया क्योंकि उसको वाटर से डर लग रहा था और वो वाटर से दूर रहा। A few years later, when I came to know the water of the cascade, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rock, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. कैस्केड मीन्स वाटरफॉल। कुछ सालों बाद विलियम को जब वाटरफॉल के बारे में पता चला, वो उसमें जाना चाहता था, बट जब भी वो स्विमिंग के लिए जाता अलग-अलग रिवर्स पे, चाहे वो टाइटन में बम्पिंग रिवर हो या वार्म लेक हो, गॉड रॉकी, उसको वो डर लौट आता और वो डर उसको पूरी तरह से कंप्लीटली जकड़ लेता जिससे उसके हाथ-पैर फूल जाते और वो अपने दिल को पकड़ लेता। The handicap stayed with me as the year rolled by. In canoes, on my 9 legs, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and the Metluas in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at the Pumping Lake in the Cascade. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trip, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. हैंडीकैप मतलब वो कंडीशन जो आपको प्रोग्रेस करने के लिए रोकती हो या बहुत डिफ़िकल्ट हो। कैनोन्स मतलब स्मॉल बोट्स। जो फ़ियर था वाटर का वो विलियम के दिल में इस तरह से रहा कि वो जब भी बोटिंग ट्रिप्स पे जाता था, अलग-अलग रिवर्स पे, न्यू हेमिस्फीयर, डेस्टुएट्स, मेटलॉइस, कोलंबिया, बम्पिंग लेक, जहाँ भी वो फ़िश के लिए भी जाता था, जैसे नेमली सैल्मन, बैस, ट्रॉट, उसको वो डर उसका पीछा करता था और जो उसकी फ़िशिंग ट्रिप थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती थी, वो बिल्कुल एन्जॉय नहीं कर पाता था बोटिंग और स्विमिंग। I used every way I knew to overcome his fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour later hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the terror returned and my legs broke. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundred of times. Bit by bit, I shed part of panic that seized me when my head went underwater. विलियम ने कोशिश करी कि अपने डर को कैसे भगाए, बट हमेशा वो फेल हो जाता। फाइनली मंथ आया अक्टूबर को, उसने एक इंस्ट्रक्टर बुलाया जिसने उसको स्विमिंग सिखाए और वो प्रैक्टिस करता दिन में 1 घंटा, 5 days a week। विलियम डिस्क्राइब कर रहा है लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे। जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसके वेस्ट के आसपास बेल्ट बांधी थी। जो बेल्ट थी वो थिक रोप से अटैच थी और जो रोप थी वो पुले से बंधी हुई थी और जो कि इंस्ट्रक्टर ने हेल्ड करी थी। और ये इंश्योर करता था कि जो विलियम जब डूबने लगता था, जो इंस्ट्रक्टर था वो उस पूल को खींच लेता था। कुछ वीक तक ऐसा चला। जब इंस्ट्रक्टर ने रोप को ढीला करता था, वो वाटर में जाता था और उसका डर वापस आ जाता था। उसकी लेग जो है काम करना बंद कर देती थी। बट 3 मंथ्स की प्रैक्टिस के बाद विलियम कंफर्टेबल हुआ। फिर इंस्ट्रक्टर ने उन्हें वाटर में कैसे ब्रीथ करना है वो सिखाया कि वो एक्सहेल करे और जब अंदर जाएँ तो एक्सहेल करे,
बाहर आएँ तो इनहेल करें और ब्रीथ करें। और उन्होंने ये भी बताया कि विलियम को जो भी एक्सरसाइज़ बताई विलियम ने कई बार करी और धीरे-धीरे वो उनका जो डर था वो ख़त्म हो गया। Next, he held me at the side of pool and had me kick with my legs. For a week, I did just that. At first, my leg refused to work, but they gradually relaxed, and finally, I could command them. Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfect each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke." थर्ड फेज में लर्निंग के जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने विलियम को वाटर में सरफेस में कैसे किक करना है और लेग्स के साथ वो बताया और ही डिड दिस और उन्होंने काफ़ी वीक तक यही किया। इनिशियली उनकी जो लेग्स थी वो वर्क नहीं करती थी, बट धीरे-धीरे विलियम की जो लेग्स है वो वर्क करने लग गई थी और विलियम उन्हें कमांड दे सकता था। फाइनली इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कहा कि तुम अब स्विमिंग सीख चुके हो। बट जो विलियम का परफेक्ट फेज़ आ चुका था, जब अप्रैल का मंथ आया इंस्ट्रक्टर ने बताया कि तुम स्विम कर सकते हो और उनसे कहा कि तुम पूल में डाइव करो और पूल में स्विम करो और पर्टिकुलर स्टाइल में जिसको क्रॉल स्ट्रोक कहते हैं। I did the instructor was finished, but I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vistas of the old terror would return. But now I could frown and say to that terror, trying of scare me, well, here to you look. And off I would go for another length of the pull. विलियम जो तैरता था उसकी क्लास अब ख़त्म हो गई थी बट विलियम को अभी अपने डर पर जीत नहीं पा पाया था। वो सोचता था अगर वो अकेला तैरेगा तो उसका डर कहीं वापस ना आ जाए और वो ट्राई करता था स्विम करने के लिए पूल में अकेला। तो टेरर आ जाता था बार-बार उसको डर लगता था। वो जानता था कैसे स्विम करना है बट उसको वो डर पे काबू भी पाना है कॉन्फिडेंस के साथ, इसलिए वो दोबारा पूल में गया स्विमिंग करने के लिए। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वाज़ स्टिल नॉट सैटिस्फाइड। आई वाज़ नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Trigger Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the Krell breaststroke, side stroke, backstroke. Only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. Old sensation written in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" I fled and I swam. जो विलियम था वो जुलाई मंथ तक ऐसे ही तैरता रहा, स्विम करता था पर वो सैटिस्फाई नहीं हुआ। वो श्योर होना चाहता था कि उसे डर ने बिल्कुल छोड़ दिया, इसलिए वो लेक वेंटवर्थ न्यू हैम्सफेयर पे गया, वहाँ पे उसने डाइव करा और उसने स्विम किया 2 माइल तक स्टैम्प आइलैंड तक। डिफरेंट स्टाइल में किया क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड स्ट्रोक से, बैक स्ट्रोक से। बट जो टेरर था एक बार आया लौट के जब वो मिडल में था। फिर उसने अपना जो हेड था वो वाटर के अंदर डाला और चारों तरफ देखा तो फ़ियर लौट आया। बट उस टाइम विलियम हँसा टेरर पर कहा कि अब तुम मुझे नहीं डरा सकते हो और उसका डर खत्म हो गया। येट आई हैड रेसिड्यूल डाउट एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट went up the Titan to Conard Meadows of Conard Creek Trail to Meadows Glacier and camped in the high meadows by the side of Warm Lake. Then next morning I strip dived into the lake and swam across to the shore and back just as Doc Corpon used to do. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. विलियम को अभी भी डाउट था तो वो वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ गए और वहाँ पे वो टाइटन के पास रीच कोनार्ड मीडो ये भी एक रिवर है और कोनार्ड क्रीक्स तक वो गए, मिड ग्लेशियर्स तक और फिर ये वो मिडोस वार्म लेक तक गए और अगले मॉर्निंग उन्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना और लेक में उन्होंने डाइव किया और उन्होंने स्विमिंग करी दूसरे एंड तक। जैसे एक फेमस अमेरिकन डॉग कॉर्पन किया करते थे जो कि एक फेमस स्विमर थे। विलियम ज़ोर से खुशी से चिल्लाए कि उन्होंने अपने डर पे काबू पा लिया है और उनकी जो वॉइस थी वो इको बनकर गूंज के वापस ही उनके पास आ गई गिलबर्ट पीक से कि उन्होंने अपने डर पे काबू पा लिया है। एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्ट्रेक terror and conquered it can appreciate in that there is a peace, there is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew, where he said all we have to fear is fear itself, because I had experienced
both the sensation of dying, the terror that fear it can produce, the will to live somehow grew in intensity. At last, I felt released, free to walk the trail and climb the peaks and to brush aside fear. ये एक्सपीरियंस उन ऑथर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ, इतनी शांति मिली जैसे डेथ के बाद किसी को मिलती है। क्योंकि वो उन जैसे किसी के अंदर डेथ का फ़ियर होता है, बट वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूज़वेल्ट, उनके शब्दों को याद किया। रूज़वेल्ट कहता था कि हमें अपने डर से डर लगता है, क्योंकि विलियम को एक्सपीरियंस हुआ कि वो डर एक डेथ के समान था, मरने का डर, और वो चाहते थे जीना। और उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो फ़ियर है, वो हमारा फ़ियर खुद का होता है। और अब वो फ्री थे कहीं भी जाने के लिए, माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने डर पे जीत पा ली थी। थैंक यू फ्रेंड्स। Please subscribe this channel for more videos. Thank you.